To all of you. Now in today's class in research methodology, I will be covering the topic as mentioned on the board, editing and coding of data. Okay. Now सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. Now I will be speaking in Hindi English mix. So सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप क्वेश्चनायर से डाटा कलेक्ट करते हैं, एक क्वेश्चनायर होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. क्वेश्चनायर होता है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, डाइकोटोमस क्वेश्चंस हो सकते हैं. और इस केस में आपको जो डेटा कलेक्शन आप करते हैं, तो डेटा कलेक्शन करते हैं आप, तो डाटा आपको रॉ फॉर्म में मिलता है. यू गेट द डेटा इन द रॉ फॉर्म. रॉ डेटा यू गेट फ्रॉम द क्वेश्चनायर. व्हेन यू कैनवास द क्वेश्चनायर टू द रिस्पोंडेंट, व्हेन यू कैनवास द क्वेश्चनायर टू द रिस्पोंडेंट, यू गेट द रॉ डेटा. And in raw data, you are having several types of errors. You are having several types of errors in the data. Data में बहुत तरह के errors होते हैं. जैसे कि some respondent is there, he has left one particular question blank. He hasn't answered that question. Or some answer is incomplete answer. Some answer is incomplete answer. Or one particular respondent is there. He has given several answers and several answers in the questionnaire, and those two questions, the answers to two questions are contradictory to each other. So जब आप raw data collect करते हैं तो वो usable form में नहीं होता है. उसको पहले usable form में लाने के लिए हम लोग editing का काम करते हैं. We do the editing of that. We do the editing of data. Editing of data हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जब आपको वो डेटा जब वो डेटा यूजेबल फॉर्म में बनाने के लिए वो इंफॉर्मेशंस जो आपने ऑब्टेन किया है बाय कैनवासिंग द क्वेश्चनर टू द रिस्पोंडेंट, एंड यू हैव गॉट द कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, दैट शुड बी इन यूजेबल फॉर्म. उसके लिए एडिटिंग करते हैं. और एडिटिंग के बाद जो आपको डेटा मिलता है वो एक्यूरेट डेटा होता है. वो डेटा एक्यूरेट होता है, रिलीवेंट होता है, कंप्लीट होता है. मैं लिखना चाहूंगा बोर्ड पे, that data should be complete. That data should be complete. Then it should be accurate. Data should be complete. The data should be accurate, and it should be relevant. It should be relevant data. All the informations which you are getting from the respondent, जो भी आपको information respondent से मिल रहा है, वो complete होना चाहिए, accurate होना चाहिए, relevant होना चाहिए. तभी आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं. Then only you can use that data. That data is in the readily available in the usable form. और इसके लिए हम लोग एडिटिंग करते हैं. एडिटिंग, we do the editing of the data. अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप एडिटिंग करते हो तो किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है. What type of errors get accrued to the data which you collect from the respondent? What type of errors get accrued? First of all, I will tell you about the fictitious interview. Fictitious interview. कई रिसर्चर्स ऐसे होते हैं, कई इंटरव्यूअर्स ऐसे होते हैं, इंटरव्यूअर्स ऐसे होते हैं कि they have taken the interview, but what happens, they have actually not taken the interview and they have fabricated the data. तो डेटा उन्होंने फैब्रिकेट किया है और उस डेटा को वो फिलअप कर देते हैं क्वेश्चनर में, और वो कहते हैं कि क्वेश्चनर कंप्लीट हो गया. Isn't it? So that particular fictitious interview is there. Actually, he has not interviewed the target respondent. He has simply filled the questionnaire by fabricating the data. उन्होंने डेटा फैब्रिकेट किया और क्वेश्चनर को फिलअप कर दिया, और वो that is the fake data और fake information is there. इस तरह का जो इंफॉर्मेशन है वो फेक इंफॉर्मेशन है, फेक डेटा है. इसकी ऑथेंटिसिटी कुछ भी नहीं है, और we cannot use such type of data or information. Such type of data is of no use because this is fictitious interview. This cannot be analyzed. इसको हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते. It cannot be analyzed. इसको हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, इसकी एक्यूरेसी नहीं है, वो इनएक्यूरेट डेटा है, अनऑथेंटिक डेटा है. So that's what we do the editing. तो इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो डेटा हम लोग को मिला है वो डेटा हमारा कितना ऑथेंटिक है, कितना एक्यूरेट है. Isn't it? So that is, और तो ये एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग फिक्सिटियस इंटरव्यू कहते हैं. ओके. अब दूसरा मैं आपको बताता हूं जो जिसमें एडिटिंग हम लोग करते हैं. Now I will tell you, सपोज कीजिए कि किसी रेस्पोंडेंट को आपने एक क्वेश्चनर कैनवास किया,
एक क्वेश्चनर आपने कैनवस किया रिस्पोंडेंट को और 2 क्वेश्चंस है उसमें कि डू यू कंज्यूम फ्रूट ऑन डेली बेसिस. ओके, नाउ यू आर आस्किंग ए क्वेश्चन दैट डू यू कंज्यूम फ्रेश फ्रूट जूस ऑन डेली बेसिस. और नेक्स्ट और एक और क्वेश्चन है उसी क्वेश्चनर में कि द इनकम ग्रुप, योर इनकम ग्रुप. अब वो क्या करता है कि वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर देता है कि आई कंज्यूम फ्रेश फ्रूट ऑन डेली बेसिस. मैं डेली बेसिस पे फ्रूट कंज्यूम करता हूं एंड माय फैमिली कंज्यूम द फ्रूट ऑन डेली बेसिस, फ्रेश फ्रूट जूस ऑन डेली बेसिस लाइक ट्रोपिकाना और रियल. और उसका इनकम कैटेगरी अपना लो बताता है. तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी या हुआ या नहीं आप सोच सकते हैं. तो इस तरह का प्रॉब्लम देखना पड़ेगा आपको. इस तरह का जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन में एरर है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. यू विल हैव टू रेक्टिफाई दैट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम इज देयर. नाउ अब मैं आपको बताता हूं, कई बार ऐसा होता है कि कोई इंटरव्यूअर है या कोई रिसर्चर है, तो रिस्पोंडेंट है, उसने क्वेश्चनर को फिलअप किया है और क्वेश्चनर में जो उसने फिलअप किया इंफॉर्मेशंस वो लेजिबल नहीं है. यू कैनॉट रीड दैट बिकॉज ऑफ द बैड हैंडराइटिंग बैड है और उसके कारण क्या है कि आप उसको ठीक से पढ़ नहीं सकते. यू कैनॉट रीड दैट इज नॉट लेजिबल. इस केस में क्या होगा, दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एंड यू नीड टू डू एडिटिंग ऑफ दैट. So due care has to be taken. ड्यू केयर आपको लेना पड़ेगा. किस स्टेज पे? एट द टाइम ऑफ गेटिंग द इंफॉर्मेशंस फिल्ड इन द क्वेश्चनर. At the time of the informations getting filled in the questionnaire, that is all the entries, all the informations entered into the questionnaire are accurate and legible. Clearly it can be read. It should be clearly read. Otherwise it will be of no use. कई बार ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चनर से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, डेटा गैदर करते हैं, तो उस केस में कुछ आपको ऐसे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं या फिर वो एम्बिगुअस होता है. एम्बिगुअस एंड इनकम्प्लीटनेस. सो एम्बिग्विटी एंड इनकम्प्लीटनेस इज अगेन वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ एरर एंड यू नीड टू डू द एडिटिंग ऑफ द डेटा. आपको एडिटिंग करना पड़ेगा वहां पे. एडिटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दैट. और समटाइम्स इट सो हैपेंस that the respondent has provided the data or information that is not relevant. Information is provided but that is not relevant. That is again a problematic situation is there. So this requires the editing of the data. Editing is required for that. So purpose हमारा editing का क्या है मैं आपको बार-बार repeat करके बताना चाहता हूँ. You should reinforce it in your mind. That is, we need to have informations and data in the raw form. That is, we have to make it usable. We have to put a stamp on that this is a quality data and that is possible only. ये तभी संभव है जबकि ये accurate हो, जबकि ये complete हो, जबकि ये free from all types of errors हो, जबकि ये legible हो. You can read that, the people can read that. That is also very very important here. So from that point of view, editing is important. You need to do the editing of the data to make it ready in the usable form. Only after that what can be done? After editing we can go for the coding. Then obviously the next step comes the coding. Next step आता है हम लोगों का coding का. अब मैं आपको बताता हूँ coding. I hope that you have understood in clear sense the editing of the data. अब मैं आपको coding के बारे में बताता हूँ. Now coding में क्या होता है कि ऐसा होता है कि बहुत सारे questions होते हैं क्वेश्चनर में. क्वेश्चनर में बहुत सारे questions होते हैं. ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, डाइकोटोमस क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. सो different types of questions are there. Now different types of questions are there and then respondent answers those questions. Now there is a sample size. एक sample size होता है. सपोज कि ये हमारा 100 sample size है और हमने एक क्वेश्चनर को कैनवास किया respondent को. तो उस केस में क्या होगा? उस केस में 100 respondents will answer the questions in different ways. If it is an open-ended question, like opinion-related questions are there. Opinion-related question है, तो उसका आंसर अलग-अलग होगा. सबके सारे respondents के अपने-अपने opinion होंगे और qualitative आंसर होगा. ओके या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है तो उसके भी आंसर्स डिफरेंट होंगे. सो व्हाट आई वांट टू से, मैं क्या कहना चाहता हूं ये समझिए कि जब क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो डिफरेंट रेस्पोंडेंट्स गिव डिफरेंट आंसर्स. डिफरेंट रेस्पोंडेंट्स गिव डिफरेंट आंसर्स. और हमको क्या करना है कि इस आंसर्स को
इन आंसर्स की कोडिंग करनी है, वी हैव टू डू कोडिंग ऑफ दीज आंसर्स। सो रॉ डेटा में हम लोग कैटेगरीज बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि रॉ डेटा में कैटेगरीज बनाते हैं। वी मेक द डिफरेंट कैटेगरीज, आंसर कैटेगरीज ऑफ द रॉ डेटा, एंड देन व्हाट हैपेंस, वी डू द कोडिंग ऑफ दैट, वी डू द एस्टैब्लिशिंग द, नाउ वी डू द कोडिंग ऑफ दैट। हम लोग कोड्स देते हैं उसको, वी गिव द कोड्स इन नंबर्स और अदर सिंबल्स, नंबर्स में या अदर सिंबल्स में हम लोग उसकी कोडिंग करते हैं। ओके, सो व्हाट हैपेंस, the various possible answers may be there of a one particular question, the various possible answers may be there of a particular question, और जो various possible answers होते हैं उसके लिए हम अलग अलग categories of answers को identify करते हैं। we identify the different categories of answers, और जो different categories of answers हैं उसको identify करके उनको numbers देते हैं, हम उनको हम नंबर्स असाइन करते हैं या उनको फिर हम सिंबल असाइन करते हैं, उनको नंबर असाइन करते हैं, उनको सिंबल असाइन करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कोडिंग कहते हैं। सिंपली सरल भाषा में इसको हम लोग कोडिंग कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे आप कोडिंग कर सकते हो डिफरेंट रिस्पॉन्सेस को, लाइक ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, यू नो, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, यू नो, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, लाइक्ड डिसलाइक्ड, लाइक्ड डिसलाइक्ड, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, okay, honest dishonest, liked disliked, agreement disagreement। सो इस तरह की हम लोग प्रक्रिया करते हैं, और जो कोडिंग का काम करते हैं हम लोग जो कोडिंग का काम करते हैं वो दो स्टेज में कर सकते हैं हम, या तो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द क्वेश्चनर, यू डू द कोडिंग एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द क्वेश्चनर, और वी कैन डू द कोडिंग एट द टाइम ऑफ एडिटिंग। हम लोग एडिटिंग के समय कोडिंग कर सकते हैं, या फिर जब हम लोगों ने क्वेश्चनर डिजाइन किया है उस समय ही कोडिंग कर सकते हैं। और तब क्या करते हैं हम लोग कि जो भी हमारे डिफरेंट आंसर्स है रेस्पोंडेंट्स के जो भी हमारे डिफरेंट आंसर्स हैं, उस आंसर्स को हम क्या करते हैं, उस आंसर्स जो डिफरेंट आंसर्स है हमारे रेस्पोंडेंट्स के, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं कोडिंग फ्रेम से उसको हम लोग कंपेयर करते हैं, और कोडिंग फ्रेम से उसको कंपेयर करके हम लोग उसको कोड्स देते हैं। डिफरेंट कोड्स आर गिवन टू द different answers, so that becomes very very important here, and that's what the coding is there. So this is the coding, that is we are categorizing the answers into different categories, and we are assigning numbers to them। हम लोग उसको numbers देते हैं, हम लोग उसको symbols assign करते हैं, और तब क्या करते हैं, इसको दो स्टेज में कर सकते हैं। At the time of preparing the questionnaire, जब आप क्वेश्चनर प्रिपेयर कर रहे हो तो you can use the color and you can do the coding of the questionnaire, the coding of the different questionnaire on that particular questionnaire, और हम लोग इसको कर सकते हैं at the time of editing of the data, या फिर जब हम लोग एडिटिंग करते हैं उस समय हम ये काम कर सकते हैं। So that's what is called as the coding of the data। इसको हम लोग कहते हैं coding of the data। So we are having the editing of the data and coding of the data। So this is all in today's class। Thank you very much। कितना मिनट हुआ?